بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت اول کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا باب دوم کے پہلے سبق کا دوسرا اور آخری حصہ پڑھیں گے، جس میں آج ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھیں گے اور کچھ نعمتوں کے بارے میں بھی جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں۔ اس لیے کہ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو جانا، اس کے خالق ہونے کو جانا اور اس کے معبود ہونے کو جانا، اور یہ سیکھا کہ کیسے وہ ہر چیز کا خالق ہے اور کیسے وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں اور ان کے شکر ادا کرنے کا طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ اپنے اس سبق میں۔ تو چلتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے توحید کا تعارف، اور آج اس کا دوسرا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہم سیکھیں گے۔ سبق کے SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا ایک ہی SLO ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ یہ ہے ہمارے آج کا SLO، اور اس کے بعد دہرائی گئے کچھ سوالات جو کہ کل کے سبق سے متعلق ہیں، تاکہ آج کے سبق کا ربط معلوم ہو جائے کل کے سبق سے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ کائنات کا خالق کون ہے؟ بالکل ٹھیک آپ نے بتایا، کائنات کا خالق ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اسی کے ساتھ اگلا سوال اسی سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی اشیاء بنائی ہیں۔ کچھ اشیاء ہم نے کل آپ کو سبق میں بتائی تھیں اور ان کی پکچرز آپ کو دکھائی تھیں، اور کچھ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ گھر جا کر کچھ اشیاء کے نام لکھیں۔ تو تمام بچے باری باری ان اشیاء کے نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی بنائی ہوئی چیزیں وہ ہر روز دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں جب ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آسان سی بات ہے کہ ہمیں عبادت بھی کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ اگلا سوال کہ کائنات کو دیکھ کر ہمیں کیا علم ہوتا ہے؟ ہمیں کس چیز کا علم ہوتا ہے؟ جب آپ اس پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، تو اس کائنات کو دیکھ کر ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جس نے اتنی بڑی کائنات اکیلے اور تنہا بنائی ہے، اور وہ اکیلا ہی اس کا نگہبان بھی ہے۔ اور آخری سوال ہے عبادت۔ جب ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عبادت کی اہم مثال کون سی ہے؟ بالکل ٹھیک، عبادت کی اہم مثال ہے نماز، کہ نماز میں ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ تو تھے کچھ سوالات جو کہ کل کے سبق سے متعلق تھے۔ آج کے سبق کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بارے میں ایک آیت آپ کے سامنے میں نے ایک آیت اور اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہے۔ اس آیت کو اور اس کی اردو کو آپ نے خوب غور سے سننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں۔ کیوں؟ اسی آیت میں آگے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے، میری نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے، تو میرا عذاب کیا ہے؟ بڑا سخت ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہر وقت یہی کہیں الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس سے آپ کو سکون بھی حاصل ہوگا اور انشاءاللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا۔ تو اب آگے چلتے ہیں، اور آپ سے ایک دو سوالات میں نے کرنے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کا سبق کس سے متعلق ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ جب کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے یا آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ۔ آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جیسے کوئی بھلائی کرے ہمارے ساتھ، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی، اس سوال کو غور سے سنیں، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کا استعمال کرتے ہوئے یہ ویڈیو، جس وقت میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں،
और इस देखने और सुनने में आप अल्लाह ताला की कौन सी नेमत का इस्तेमाल कर रहे हैं? चलिए बताएं। शाबाश, आप वीडियो देखने के लिए अल्लाह ताला की दी हुई नेमत आंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप ये जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये लेक्चर सुन रहे हैं, आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमत कान का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें दी हैं। हमें दिमाग दिया है, हमें हाथ दिए हैं, हमें नाक दिया है, हमें दांत, ज़बान और बेशुमार नेमतें दी हैं। अगर हम अपने जिस्म ही को देखें तो हमें अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें नज़र आती हैं। फिर इसके बाद अगर हम बाहर जो दुनिया है उसको देखें, अल्लाह ताला ने कितनी हमें नेमतें दी हैं कि हम चल फिर कर, इन टांगों के ज़रिए से चल फिर कर जब बाहर जाते हैं और आसमान को देखते हैं, अल्लाह ताला की नेमतें। हम ज़मीन को देखते हैं, अल्लाह ताला की नेमतें। घर में देखें, स्कूल में देखें, जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें जगह जगह बिखरी पड़ी हैं, आपको नज़र आती हैं, जिनसे आप फ़ायदा हासिल करते हैं। चरिंद परिंद, जानवर, फल फूल, सब्जियां, खाने पीने की चीज़ें, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की नेमतें हैं जिनसे हम फ़ायदा उठाते हैं। रोज़मर्रा खाने पीने की चीज़ें आप देख लें, आप कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं, अल्लाह ताला की नेमतें, और कौन कौन सी नेमतें आप पीते हैं, आप उन पर कभी गौर करें तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसने हमें इतनी ढेर सारी नेमतें दी हैं कि जिनका हम शुमार तक नहीं कर सकते। तो ये तमाम नेमतें किसने दी हैं? अल्लाह ताला ने दी हैं। उसके बाद आपके ख्याल में, आप ज़रा सोच कर बताएं, आपके ख्याल में जब इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं और अता की हैं, तो आपके ख्याल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कैसी आदत है? ये अच्छी आदत है? बिल्कुल अच्छी आदत है। शाबाश। क्यों? नेमतें उसने दी हैं तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे कि हमने ऊपर ये सीखा कि जब कोई इंसान हमारे साथ नेकी करता है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं तो हमें चाहिए कि हम उसका शुक्र अदा करें और हर वक्त कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। इसके बाद कुछ बातें आज के सबक से मुताल्लिक आपकी स्लाइड में आपको नज़र आ रही हैं। इस स्लाइड को गौर से देखिए और खूब गौर से सुनिए कि हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें इस्तेमाल करते हैं और हमें कैसे उनका शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे पहले आप ये जान लें कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, हम गिन भी नहीं सकते, उनकी गिनती भी नहीं कर सकते, उनका शुमार भी नहीं कर सकते। और उसके बाद हम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा नेमतें उसने दी हैं। और जब इतनी नेमतें दी हैं तो याद रखें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना बहुत बड़ी नेकी है, बहुत सवाब का काम है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वालों से राज़ी होते हैं, खुश होता है वो कि जब बंदे उसका शुक्र अदा करते हैं। और नेमतों का शुक्र अदा करने का एक और अहम फ़ायदा, जैसे कि हमने आयत में पढ़ा कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि शुक्र अदा करना, इससे नेमतों में क्या होता है? इजाफा होता है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का माना क्या है? तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए हैं जिसने हमें ये नेमतें दी हैं। तो हम इन नेमतों के शुक्र के तौर पर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अब हम चलते हैं किताब की जानिब और देखते हैं कि किताब में आज के SLO के बारे में क्या मौजूद है और उसके मतन में हमें क्या बताया गया है। तो आप अपनी किताबें खोल लीजिए और इस सबक को गौर से सुने, और ये सबक आपने बारी बारी एक दूसरे को भी सुनाना है और वालिदैन को भी सुनाना है। सबक की जानिब देखें। हमें अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें अता की हैं। हम आँख की मदद से, अब देखें अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें हैं, कुछ नेमतें मिलकर पढ़ते हैं। हम आँख की मदद से रंगारंग चीज़ें देखते हैं। हम देखते हैं, तितली को देखते हैं, परिंदों को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, रंग बरंग की चीज़ों को देखते हैं। और कानों से हम आवाज़ें सुनते हैं, हम अजान सुनते हैं, हम तिलावत सुनते हैं, हम माँ बाप की बात सुनते हैं, हम असातिज़ा की बात सुनते हैं, हम ये लेक्चर सुन रहे हैं। ये किसकी नेमत है? ये अल्लाह की नेमत है।
उसके बाद हाथों से हम पकड़ते हैं, जैसे इस वक्त मैं कलम से आपके सामने लिख रहा हूं, आप भी इसके ज़रिए से बॉल पकड़ते हैं, पेंसिल पकड़ते हैं, रबर पकड़ते हैं, किताब और कॉपी को उठाते हैं और खेलते हैं मुख्तलिफ खेल। ये हाथ की नेमत किसने दी है? अल्लाह ताला ने दी है। और उसके बाद पाँव से हम चलते हैं। आप देखें, बाहर से आप चल के अंदर आते हैं, यहाँ से आप कभी भाग के उधर जाते हैं, कभी इधर। ये चलना फिरना दौड़ना, ये किसकी नेमत है? ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। तो ये तमाम अल्लाह ताला की नेमतें हैं। ये तो हमने चंद आपके सामने रखी, वरना जैसे कि हमने आपको पहले बताया, अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं और उनकी गिनती भी नहीं हो सकती। और उसके बाद हमें अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों? कि अल्लाह ताला शुक्र करने वालों से खुश होता है और उस नेमत में इजाफा भी करता है। और आखिर में नेमत का शुक्र अदा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह का मान आपको मैंने बताया कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सबक जिसको हमने पढ़ा और अच्छी तरह समझा। अब आपको देते हैं कुछ घर का काम और उसके बाद सरगर्मियां। सबसे पहले है घर का काम कि आपने वालिदैन के हमरा गंदम के उगने और गंदम से उसका बीज निकलने, उससे आटा बनने और आटे से रोटी बनने का ये पूरा अमल आपने किसी वीडियो में देखना है। और आपने वालिदैन की मदद से ये जानने की कोशिश करनी है और उनसे पूछना भी है कि कैसे इंसान अल्लाह ताला की दी हुई नेमत अकल, ये अकल किसकी नेमत है? अल्लाह ताला की है। कैसे इंसान अकल का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ चीज़ें बनाता है। इसी तरह आपने मुख्तलिफ चीज़ें कि कैसे अल्लाह ताला ने एक चीज़ बनाई और अल्लाह ताला की दी हुई नेमत यानी अकल से इंसान ने मज़ीद चीज़ें उससे बनाई। ऐसी कोई वीडियो आपने देखनी है और आपने जमात में आकर बताना है कि आपको वो वीडियो कैसी लगी और आपने उससे क्या सीखा। ये आपकी किताब में भी मौजूद है, वहाँ से भी आप ये देख सकते हैं। और उसके बाद आपने ये भी सीखना है कि कैसे अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ की नेमत दी और कैसे उस नेमत से इंसान ने फ़ायदा उठाया, ताकि आपको इल्म हो कि अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं और कैसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनसे फ़ायदा उठाते हैं। उसके बाद है सरगर्मी। सरगर्मी निहायत आसान है कि अल्लाह ताला की 5 नेमतों के नाम तहरीर करें। कितनी नेमतें? वैसे तो बेशुमार हैं, लेकिन आपने सिर्फ 5 नेमतों के नाम तहरीर करने हैं और उनके सामने लिखना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके सरगर्मी है। ये अभी भी आप कमरा जमात में भी कर सकते हैं और घर जाकर भी आप ये सरगर्मी कर सकते हैं। चूँकि ये इस सबक का आखिरी हिस्सा है, लिहाजा आपका पसंदीदा अमली मंसूबा इसमें मौजूद है कि आपने पूरे हफ्ते का नक्शा बनाकर वालिदैन से तहरीर करवाना है कि किस दिन आपने कौन सी नेमत का इस्तेमाल करके कौन से काम किए। जैसे कि हमने कुछ नेमतें और उनका इस्तेमाल आपके सामने रखा, आपने इसी तरह कुछ नेमतें और हर नेमत के सामने आपने अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना है। और ये आपने पूरे हफ्ते में कम से कम हर रोज़ आपने 5 नेमतें, कम से कम 5 नेमतें हर रोज़ आपने तलाश करनी है और आपने ये देखना है कि कैसे उस नेमत का इस्तेमाल करते हुए आपने कौन सा काम किया और उसके सामने लिखना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये था अमली मंसूबा। अब चलते हैं मज़ीद पढ़ें। अगर आप अली और अहमद की मज़ेदार कहानी पढ़ना चाहते हैं तो इस लिंक के ज़रिए से आप वो कहानी भी पढ़ सकते हैं और इस कहानी से आपको मालूम होगा कि कैसे हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है। ये बहुत मज़े की कहानी आप इस लिंक के ज़रिए से पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। उसके बाद हम चलते हैं मश्क की जानिब। तो आज के सबक से मुताल्लिक असातिज़ा बच्चों को कुछ सवालात दें जो कि उनकी मश्क में मौजूद हैं, चाहे वो सुनना बोलने के हों। इन सवालात के अलावा असातिज़ा दीगर सवालात भी पूछ सकते हैं। उसके बाद MCQs हैं। आज के सबक से मुताल्लिक MCQs आपने हल करने हैं जिनका तरीका हमने कल आपको बताया था। उसके बाद खाली जगह आपने पुर करनी है और निहायत आसान से मुख्तसर सवालात के आपने जवाब देने हैं सिर्फ एक लाइन में। और उसके बाद नीचे कुछ नेमतें और उनका इस्तेमाल आपके सामने मौजूद है। जो आपको मुनासिब लगता है आपने उस तस्वीर के साथ इस जुमले को मिलाना है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं किससे? आंख से। तो आपने ये नुक्ता मिला लेना है इसके ज़रिए से और बाकी 4 नेमतें और उनका इस्तेमाल भी आपने ऐसे ही वाज़ेह करना है। और उसके बाद सबक का इयादा कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि तौहीद का माना है कि अल्लाह ताला ही अकेला
عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں جو کہ بے شمار ہیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ 3 بنیادی نکات ہیں آج کے سبق کے، اور اس سبق کی ورک شیٹ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اس کو حل کرنا ہے اور استاد کے پاس جمع کروانی ہے، اور ساتھ ہی موجود ہے اس کی پی پی ٹی اور لیسن پلان جو کہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔